کلکتہ شہر میرے لیے کوئی نیا شہر نہیں تھا۔ ٹرین کلکتہ شہر کے ہوڑا اسٹیشن پر پہنچی تو میں رکشے میں سوار ہو کر سیدھا بہو بازار پہنچ گیا۔ بہو بازار کلکتے کا ایک کاروباری بازار ہے اور اس بازار میں دنیا کی ہر شے کی دکان موجود ہے۔ بابو رام نے مجھے لدھیانے میں ہی اپنے بہو بازار والے مجاہد کی تصویر دکھا دی تھی۔ بہو بازار میں کافی رونق تھی۔ بنگالی مرد اور ساڑیوں میں ملبوس بنگالی عورتیں خرید و فروخت میں مصروف تھیں۔ بازار میں سے رکشہ اور ہاتھوں سے کھینچی جانے والی لمبی لمبی ریڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اپنے آدمی کی چائے کی دکان کی تلاش تھی۔ بھارت کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں چائے کافی بہتات میں پائی جاتی ہے۔ یہ مرطوب علاقے ہیں، سال میں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ یہاں دودھ، گھی، لسی کا وہ رواج نہیں جو ہمیں پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بابو رام نے مجھے اپنے مجاہد کا نام بتا دیا تھا۔ آپ کے لیے اس کا نام شاہدین ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ شاہدین کلکتہ میں کٹر قوم پرست بھارتی مسلمان کی حیثیت سے کافی جانا پہچانا آدمی تھا۔ اس کی چائے کی دکان میں نے تلاش کر لی۔ لمبی دکان تھی، اندر کرسیاں میزیں لگی تھیں۔ لوگ چائے کافی پینے کے شوقین تھے۔ باہر ایک جانب بنگالی پنواڑی کا کھوکھا تھا جہاں درگا دیوی کے شیشے میں جڑی ہوئی تصویر کے آگے لوبان سلگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آدمی شاہدین کو شکل سے پہچان دیا۔ وہ کاؤنٹر کے قریب لوہے کی کرسی پر بیٹھا بنگلہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، کافی مل جائے گی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، اندر بیٹھو، مل جائے گی۔ میں نے دوبارہ کہا، میں مدراسی کافی پینا چاہتا ہوں۔ تب شاہدین نے اخبار سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک خالی کرسی پر بیٹھے ہوئے میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے شاہدین سے ملنا ہے۔ میری نظریں بازار پر لگی تھیں۔ اب اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اس نے دوبارہ اخبار پر نظریں جما لی تھیں۔ اس نے اخبار کا ورق الٹتے ہوئے پنجابی میں کہا، تمہیں جس نے بھی بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے بابو رام کا اصلی نام بتا دیا۔ شاہدین نے اخبار اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ ایک سگریٹ خود لگایا، ایک مجھے پیش کیا اور سگریٹ کو سلگاتے ہوئے آہستہ سے بولا، تمہارا کوڈ ورڈ کیا ہے؟ میں نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے آہستہ سے وہ کوڈ لفظ بولا جو بابو رام نے مجھے بتایا تھا۔ شاہدین نے پیچھے کسی نوکر کی طرف گردن موڑ کر کہا اور بنگلہ زبان میں چیخ کر کہا، اچھا والا کافی دو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اندر بیٹھو۔ میں دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکا کافی کا پیالہ آگے رکھ گیا۔ میں کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ میری نگاہیں شاہدین پر لگی تھیں۔ وہ دکان سے اتر کر بازار میں پان سگریٹ کے کھوکھے کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بازار میں پہلے اس نے دائیں جانب دیکھا، پھر بظاہر بڑی بے نیازی سے دوسری جانب دیکھا۔ یقینی طور پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی خفیہ پولیس والا تو نہیں۔ جو آدمی دشمن ملک میں کسی جگہ ٹک کر اپنے ملک کے لیے جاسوسی ہیں، وہ خفیہ پولیس والوں کے چہروں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ دوسرے ملک میں جا کر اپنے ملک کے مفادات کے لیے جاسوسی کرنے کا ہر ملک کو حق ہوتا ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں ایک خاص بین الاقوامی قانون کے تحت جاسوس کو سزا ملتی ہے، مگر بھارت میں اس بین الاقوامی قانون کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بھارت میں پاکستان کا کوئی باقاعدہ جاسوس میں نے اپنے قیام کے دوران نہیں دیکھا۔ اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی بھی تو وہ یا تو بھارتی مسلمان ہی تھا جو محض پاکستان سے محبت اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر رضاکارانہ طور پر یہ کام کر رہا تھا، یا پھر اس کا تعلق جموں کشمیر کی حریت پرست تحریک سے تھا جو کشمیر میں مسلمانوں پر بھارتی ظلم و ستم اور جارحانہ قبضے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں تھا۔ مجھے پاکستان نے بھارت میں جاسوسی کرنے نہیں بھیجا تھا۔ پاکستان کی حکومت کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں بھارت میں اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہوں۔ میں اپنے طور پر یہ فرض ادا کر رہا تھا اور میری کمانڈو سرگرمی کا زیادہ تعلق جہاد کشمیر سے تھا۔ شاہدین کا تعلق بھی کشمیر کی حریت پرست تحریک سے تھا۔ کلکتے میں وہ کئی برسوں سے ایک قوم پرست بھارتی مسلمان کی حیثیت سے چائے کا ہوٹل چلا رہا تھا۔ حقیقت میں وہ سچا کشمیری مسلمان تھا اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام بھی اس کے خفیہ مشن میں شامل تھا۔ وادی کشمیر سے اتنی دور بیٹھ کر وہ براہ راست جہاد کشمیر میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ بھارتی حکومت اور بھارتی ملٹری ہائی کمانڈ کی سرگرمیوں پر ضرور کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے آدمی اسے سرکاری حلقے کی ہر نئی خبر لا کر دیتے جسے وہ لدھیانے میں بابو رام کو پہنچا دیتا اور بابو رام اسے سری نگر میں حریت پرستوں تک پہنچا دیتا۔ جنگ ستمبر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی حکومت اور بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کی خفیہ سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا اور ظاہر یہی ہوتا تھا کہ بھارتی حکومت پاکستان سے 65 کی جنگ کا اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور اس نے ہر قسم کی فوجی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں۔ ان حقائق کی تصدیق بعد میں شاہدین نے بھی کی۔ میں دکان کے اندر بیٹھا خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ شاہدین ابھی دکان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور ایک بنگالی گاہک سے بنگلہ زبان میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ دکان میں گاہک کم ہو گئے تھے۔ میرے آس پاس کی میزوں پر کوئی گاہک نہیں تھا۔ شاہدین شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کوئی گاہک نہیں ہے تو وہ سگریٹ کے کش لگاتا میرے قریب آ کر بنگلہ زبان میں بولا کہ کافی مجھے پسند آئی۔ میں نے بنگلہ زبان میں بھالو کہہ دیا۔ وہ میز پر دونوں ہتھیلیاں جما کر جھک گیا اور آہستہ سے اردو میں بولا، ہوڑا اسٹیشن کے نمبر 3 پلیٹ فارم پر میرا انتظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز سے پیچھے ہٹ گیا اور سگریٹ کا کش لگا کر ملازم کو بنگلہ میں کچھ ہدایت دینے لگا۔ جو پیغام اس نے مجھے دینا تھا دے دیا تھا۔ میں چائے کی دکان میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھا اور بازار میں آ کر اس طرف چلنے لگا جدھر سے میں بازار میں داخل ہوا تھا۔
बाजार में ही मैंने एक रिक्शा लिया और उसे होड़ा स्टेशन चलने को कहा। अगर आप कलकत्ते गए हैं और होड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं तो आपको याद होगा कि कलकत्ते के 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक का नाम सियालदा है, दूसरे का नाम होड़ा है। पंजाब और भारत के दूसरे सूबों से आने वाली ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों पर ही आकर ठहरती हैं। होड़ा का रेलवे स्टेशन लंबे लंबे प्लेटफार्मों वाला है। लोहे की छत बहुत ऊंची है। मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे किस जगह इत्मीनान से बैठकर शाहदीन का इंतजार करना चाहिए। वहाँ कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। किताबों और चाय के स्टॉल जरूर थे। मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। ये भी चाहता था कि शाहदीन मुझे दूर से देख ले। चुनाचे मैं एक बुक स्टॉल के कोने की जानिब लोहे के बहुत बड़े संदूक पर बैठ गया, जो रेलवे वालों का ही लगता था। शक्ल और हुलिये से मैं पंजाब का कोई हिंदू नौजवान लग रहा था। मेरी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे। बालों से ये तासुर मिलता था कि मैं मजहबी टाइप का हिंदू हूँ। जहरीली सुइयों वाला बॉल पॉइंट उस वक्त मेरी जैकेट की अंदर वाली जेब में महफूज था। इसके अलावा कुछ इंडियन करेंसी भी थी। माथे पर लाल तिलक लगा था। कलकत्ते के आसमान पर बादल छाने लगे थे। ठंडी हवा चल रही थी। लगता था कि बारिश होगी। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आने वाली थी। शायद उसी ट्रेन को वहाँ से वापस भी जाना था। मुसाफिर आने लगे थे। कुली सरों पर और ट्रॉलियों में सामान लादे आ रहे थे। ये बंगाली मुसाफिर थे। इनमें हर उम्र की दुबली मोटी नौजवान और बूढ़ी बंगला औरतें और मर्द थे। किसी को मेरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। हर तरफ बंगला जबान बोली जा रही थी। एक सिख बच्चा गोद में उठाए अपनी बीवी के साथ मेरे करीब से पंजाबी बोलता गुजर गया। पंजाबी जबान सुनकर मेरे होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया। दूसरे मुल्क में अपनी मादरी जबान सुनकर बड़ी खुशी होती है। मुझे इसका कई बार तजुर्बा हो चुका है। मेरी निगाहें अपने आदमी शाहदीन को ढूंढ रही थी। मुझे वहाँ बैठे काफी देर हो गई थी। इतने में एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। वहाँ शोर मच गया। इसी दौरान मुझे शाहदीन दिखाई दिया। वो एक तरफ से मेरी जानिब चला आ रहा था। उसने मुझे दूर से देख लिया था। मैं अपनी जगह बैठा रहा। वो भी मेरे पास आकर लोहे की संदूक पर बैठ गया। वो सिगरेट पी रहा था। सामने ट्रेन की तरफ देखते हुए उसने पंजाबी में मुझसे कहा, 6-7 कदम का फासला डालकर मेरे पीछे पीछे आओ। हम होड़ा स्टेशन से निकल गए। शाहदीन होड़ा ब्रिज की तरफ मुड़ गया। दरिया हिगली कलकत्ते शहर के दरमियान से नहीं तो उसके पहलू से जरूर गुजरता है। पहले इस दरिया पर कश्तियों का पुल हुआ करता था। उसके बाद लोहे का बहुत बड़ा पुल बना दिया गया, जिसे आज होड़ा ब्रिज कहा जाता है। हुगली दरिया असल में दरियाए जमुना है, जिसका नाम कलकत्ते से गुजरते हुए हुगली पड़ गया है। ये दरिया कलकत्ते की बंदरगाह खिजरपुर जेटी से होकर आगे खलीज बंगाल में जा गिरता है। शाहदीन सड़क पर एक जगह रुक गया। वहाँ एक बंगाली दाब यानी कच्चे नारियल की रेडी लगाए बैठा था। शाहदीन ने टैक्सी ली और वहाँ से कुछ दूर जाकर टैक्सी को रुकवा दिया। मैं तेज तेज चलकर टैक्सी के करीब गया और उसमें सवार हो गया। होड़ा ब्रिज वहाँ से दूर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद हमारी टैक्सी होड़ा ब्रिज यानी दरियाए हुगली के पुल पर से गुजर रही थी। जब हम पुल पर से गुजर गए तो वो कलकत्ते में बोली जाने वाली आम उर्दू में कहने लगा, आजकल यहाँ बारिशें बहुत होती हैं। मैंने कहा मगर बरसात का मौसम तो गुजर चुका है। वो बोला यहाँ बरसात के आखिर में बहुत खूब बारिशें होती हैं। देख लो सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मालूम हुआ कि ये महज बातें करने के लिए बातें कर रहा था, ताकि टैक्सी ड्राइवर को हैरत न हो कि ये 2 आदमी इतनी देर से खामोश क्यों बैठे हैं। दरियाए हुगली के पार इलाका फैक्ट्री एरिया कहलाता है। यहाँ हर किस्म के कारखाने हैं। छोटे छोटे कारखाने भी हैं और ऊंची ऊंची चिमनियों वाले बड़े बड़े कारखाने भी। इस इलाके में मिल मजदूरों के क्वार्टरों के अलावा फैक्ट्रियों के मालिकों की बड़ी बड़ी कोठियों भी हैं, जो दरिया के किनारे दूर तक चली गई हैं। हमारी टैक्सी कारखानों के करीब एक सड़क पर से गुजर रही थी। शाहदीन कहने लगा, सेठ साहब का कारखाना भी उसी जगह पर है। वो मुझे जानते हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें उनके कारखाने में जरूर नौकरी मिल जाएगी। मैंने शाहदीन की तरफ देखा। उसने आंख से टैक्सी ड्राइवर की तरफ इशारा किया, गोया वो ये कहना चाहता था कि मैं सिर्फ इस टैक्सी ड्राइवर के लिए बातें कर रहा हूँ, कि इसे हम पर किसी तरह का कोई शक न गुजरे। उसने एक कारखाने के बड़े गेट के पास टैक्सी रुकवाई और हम कारखाने के गेट के पहलू में एक खेत में से गुजरने के बाद दरिया के किनारे पर आ गए। यहाँ कहीं कहीं मजदूरों की झोंपड़ियाँ और टीन की ढलानी छतों वाले क्वार्टर नजर आ रहे थे। शाहदीन ने यहाँ से थोड़ी दूर एक क्वार्टर अपने रहने के लिए बनवा रखा था। कहने लगा, मैं कभी कभी यहाँ पर आता हूँ। लोगों पर मैंने ये जाहिर किया हुआ है कि ये मेरा गोदाम है, जहाँ मैं चाय चीनी का स्टॉक रखता हूँ, जो मेरे होटल में काम आता है। लेकिन असल में मैं इस क्वार्टर से अपने आदमियों के साथ राब्ता रखता हूँ। वो लोग इसी जगह आकर मुझे जरूर रिपोर्टें मुहैया करते हैं और मुझसे हिदायत वसूल करते हैं। पटसन के खेतों से कुछ फासले पर दरिया के किनारे सरकंडों और नारियल के झुंडों के नीचे ये लकड़ी की छत और पत्थरों की दीवारों वाला क्वार्टर छोटा सा था। बाहर पानी का एक पंप लगा था। नारियल के कटे हुए दरख्तों के 2-4 तने और सूखी शाखों का ढेर पड़ा था। क्वार्टर के अंदर बांस की चारपाई बिछी थी। सहन में पानी के पंप के पीछे टीन की छत वाला एक बोसीदा किचन था। हम अंदर जाकर बैठ गए। शाहदीन ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे सिगरेट दिया। कहने लगा, अब तुम सारी बात मुझे तफसील से बताओ। लुधियाने वाले अपने आदमी ने मुझे सिर्फ एक इशारा दिया था कि तुम किसी आदमी की तलाश में हो। मैंने शाहदीन को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बयान कर दी और उसे बताया कि मैंने श्रीनगर की शहीद मस्जिद के सामने खड़े होकर कसम खाई है कि मैं सैकड़ों मजलूम कश्मीरी मुसलमानों का खून बहाने वाले इस कसाई और जालिम सूबेदार जो यही कहीं रूपोश है, उससे शहीदों के खून का बदला जरूर लूंगा। मुझे लुधियाने से मालूम हुआ है कि वो कलकत्ते आ गया
गया है और शाने पर किसी हुर्रियत परस्त मुजाहिद की गोली लगने से जख्मी है। मैं उसकी शक्ल पहचानता हूँ, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और दरमियानी उम्र का आदमी है। शादीन मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, साथ साथ वो कुछ सोचता भी जा रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कहने लगा, सूबेदार दुर्गादास तुम्हारे कहने के मुताबिक अब फौज में नहीं है, वो जख्मी भी है, इसलिए यकीनन यहाँ वो किसी ऐसे अस्पताल में पड़ा हुआ होगा जिसका ताल्लुक इंडियन आर्मी से हो। अगरचे कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और यहाँ किसी एक आदमी का पता लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन हमारे आदमी बहुत ज्यादा होशियार और ज़हीन हैं। वो यहाँ हर जगह अपना असर रसूख रखते हैं। मुझे कुछ वक्त दो, मेरे आदमी दुर्गादास का पता ढूंढ निकालेंगे। मैं शाहदीन की झोंपड़ी में पड़ गया। मुझे उसने शहर अपने होटल यानी चाय की दुकान पर आने से मना कर दिया था। एक लड़का मुझे सुबह शाम क्वार्टर में खाना वगैरह दे जाता। मुझे वहाँ रहते 3 दिन गुजर गए। इस दौरान शाहदीन मुझसे मिलने बिल्कुल ना आया। चौथे दिन शाम को वो आया, कहने लगा मेरे आदमियों ने कश्मीर के कातिल दुर्गादास का पता लगा लिया है। मैंने जल्दी से पूछा क्या वो किसी अस्पताल में है। शाहदीन बोला उसके बारे में सिर्फ इसी कदर मालूम हो सका है कि वो कलकत्ते की बंदरगाह के पीछे जो आबादी है वहाँ किसी जगह रूपोश है। उसे खौफ लगा हुआ है कि कोई न कोई कश्मीरी कमांडो उसे जरूर हलाक कर देगा। इस वजह से वो किसी खुफिया जगह पर छुप कर रह रहा है। हमारा कोई भी आदमी सर तोड़ कोशिश के बावजूद उसके ठिकाने का सुराग नहीं लगा सका। ये भी मालूम हुआ है कि उसने कुछ रिटायर्ड फौजी अपने इर्द गिर्द बतौर बॉडीगार्ड रखे हुए हैं जो हर वक्त मुसल्ला और चौकस रहते हैं और सूबेदार दुर्गादास की हिफाजत करते हैं। कलकत्ते की बंदरगाह के पीछे जो नई और पुरानी कॉलोनियां हैं, मैं उन कॉलोनियों से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने शाहदीन से पूछा वहाँ वो किसी कॉलोनी में रूपोश हो सकता है। शाहदीन ने कहा मुझे और कुछ मोहलत दो, मेरे आदमी ये भी पता कर लेंगे। उसके बाद मजीद 3 दिन गुजर गए, लेकिन शाहदीन का आदमी दुर्गादास का अता पता मालूम न कर सका। आखिर मैंने शाहदीन से कहा भाई अब मैं खुद उसका पता लगाने जाऊंगा। मैं बंदरगाह वाली आबादियों में आता जाता रहा हूँ। शाहदीन बोला जैसे तुम्हारी मर्जी, इस क्वार्टर की एक चाबी तुम्हारे पास रहेगी, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तुम्हें कश्मीरी मुसलमानों के इस मूजी कातिल की तलाश के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैंने उसे अपनी जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल के बारे में कुछ न बताया। बाज चीजें और बाज राज ऐसे होते हैं कि अक्लमंद कमांडो वो राज अपने आदमियों से भी छुपा कर रखते हैं। मैंने कहा तुम मुझे सिर्फ एक चाकू ला दो जिससे मैं दुर्गादास का खात्मा कर सकूं। ये भी मैंने महज इसलिए शाहदीन से कह दिया था कि वो ये न सोचे कि मैं निहत्ता उस पेशावर फौजी को कैसे हलाक करूंगा। शाहदीन को मेरे बारे में ये इल्म नहीं था कि मैं हुर्रियत परस्त होने के अलावा एक तजुर्बाकार कमांडो भी हूँ। शाहदीन ने उसी वक्त एक संदूक में से चाकू निकाल कर मुझे दिया। ये आम चाकू से जरा बड़ा चाकू था। मैंने उसे जेब में रख लिया। शाहदीन के मुखबरों ने सिर्फ ये इशारा दिया था कि सूबेदार दुर्गादास को एक बार सावंत कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में जाते देखा गया है। इसका मतलब था कि वो सावंत कॉलोनी में या उसके आसपास ही कहीं रूपोश होगा। सावंत कॉलोनी बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी। यहाँ उनके झोंपड़ा नुमा बोसीदा क्वार्टर थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुर्गादास इन गंदे क्वार्टरों में नहीं छुप सकता। वो जरूर इर्द गिर्द की किसी कॉलोनी में छुपा हुआ होगा और अपने पीछे लगे हुर्रियत परस्तों के मुखबरों को धोखा देने के लिए वो सावंत कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में पूजा वगैरह को आया होगा। उस रोज सारा दिन वक्फे वक्फे से कलकत्ते में बारिश होती रही। मैं शाहदीन के क्वार्टर में ही रहा। शाम को बारिश बिल्कुल रुक गई और जरा अंधेरा हुआ तो मैं दरिया पार करके बस में सवार होकर बंदरगाह पहुंच गया। सावंत कॉलोनी वहाँ थोड़े फासले पर ही थी। मैं सीधा उस कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में गया। मंदिरों का माहौल मेरे लिए अजनबी नहीं था। मुझे मालूम था कि दुर्गा देवी की पूजा किस तरह की जाती है और हनुमान और विष्णु और शिव जी के मंदिर में पूजा के वक्त क्या रसूमात अदा की जाती हैं। मैंने कभी किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया था, बस हाथ से घंटी बजा दिया करता था या हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता और दिल में कहता कि मैं जानता हूँ तू पत्थर का बुत है, मेरे नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मेरा सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता है जिसका कोई शरीक नहीं और वो सारे जहानों का रब है। दुर्गा देवी के मंदिर में पूजा करने वालों का काफी रश था। मैं मंदिर के दरवाजे में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा कि यहाँ कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मुझे दुर्गादास के बारे में कोई सुराग बता सके। ऐसा आदमी मंदिर का बड़ा पुजारी ही हो सकता था, क्योंकि पुजारी हमेशा मंदिर में रहता है और वो पूजा करने आने जाने वालों से वाकिफ होता है। मैंने दूर से पुजारी को देखा। वो मूर्ति के आगे एक तरफ होकर बैठा पुजारियों से पैसे वसूल करने और उन्हें फूल देने में मसरूफ था। मैं एक चबूतरे के पास खामोशी से बैठ गया। काफी देर बाद जब पूजा करने वालों का रश खत्म हो गया और वहाँ इक्का दुक्का लोग ही रह गए तो मैं पुजारी की तरफ बढ़ा। उसे 10 रुपए का नजराना पेश किया। वो 10 रुपए देखकर बड़ा खुश हुआ। समझ गया कि मैं कोई मोटी असामी हूँ और नया नया इस इलाके में आया हूँ। उसने मुझे फूलों के साथ थोड़ी सी मिठाई भी दी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा और कहा, महाराज हम बड़ी दूर से देवी के दर्शनों को आए हैं। आज रात मंदिर में ठहरने का ख्याल है। क्या यहाँ कोई ठिकाना मिल जाएगा? हम इसका किराया अदा कर देंगे। पुजारी को मुझसे माल मिलने की तवक्को थी। कहने लगा, क्यों नहीं महाराज, आपको जरूर कोठरी मिल जाएगी। आप थोड़ी देर बैठे, मैं आपको खुद ले जाकर कोठरी दिखाता हूँ। मैं कुछ देर मंदिर के अहाते में ही टहलता रहा। जब देखा कि पुजारी अपनी पूजा पाठ की दुकान बढ़ा रहा है तो मैं उसके पास गया। वो मुझे अहाते में एक छोटी सी कोठरी में ले गया जहाँ खाट का बिस्तर लगा था और मच्छरदानी भी लगी हुई थी। ऊपर छत के साथ पंखा भी चल रहा था। ये जगह अच्छी थी। मैंने उसे जेब में से 20 रुपए निकाल कर दिए और कहा, महाराज जाती दफा भी आपकी खिदमत करूंगा।
मैं विष्णु हूँ, मेरे लिए अगर दाल सब्जी का इंतजाम हो जाए तो ठीक रहेगा। पुजारी बोला, महाराज आप कोई फिक्र ही न करें, आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा। रात को वो खुद मेरे लिए सब्जी, तरकारी और चावल लेकर आया। कहने लगा, महाराज आप माता शेरावाली के देश से आए हैं क्या? मैंने यूं ही कह दिया कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ। उसके बाद मैंने उसे संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाए जो मैंने ऐसे मौकों के लिए जुबानी याद रखे थे, और उसे गीता का थोड़ा सा पाठ भी सुनाया। वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुआ। साथ ही मैंने मजीद जेब से 20 रुपए निकाल कर उसे दिए। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस वक्त रात का पहला पहर गुजर रहा था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद कहा, बात यह है पुजारी जी, हमारा एक बड़ा भाई है, वो फौज में सूबेदार था। कश्मीर के महाज पर उसने बड़े आतंकवादी मुसलमान कश्मीरियों को ठिकाने लगाया था। अब फौज ने उसे रिटायर कर दिया है। उसको खतरा था कि कश्मीरी मुसलमान उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने भाई जी को बड़ा समझाया कि वो कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके दिल पर खौफ बैठ गया। बस वो एक रोज घर से निकल भागा। हमारी माता जी और भाई के बच्चे सख्त परेशान हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो कलकत्ते के सामत कॉलोनी में रहता है। बस उसी की तलाश में आया हूँ। माता जी तो वीर जी के गम में स्वर्गवास होने वाली हैं। पुजारी बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। उसने पूछा, उसका नाम क्या है? मैंने कहा, सूबेदार दुर्गादास उसका नाम है। कश्मीर में उसे कांधे पर गोली भी लगी थी। पुजारी झट बोला, उसकी मूछें तो नहीं है? मुझे खबर मिल चुकी थी कि दुर्गादास ने पहचाने जाने के खौफ से अपनी बड़ी बड़ी मूछें मुंडवा ली हैं। मैंने कहा, पहले थी, मगर मेरा ख्याल है अब वीर जी ने मूछें कटवा दी होंगी। फिर पुजारी ने मुझे उस शख्स का जो हुलिया बताया वो हूबहू दुर्गादास का था। पुजारी बोला, महाराज इस शक्ल सूरत के आदमी को मैंने 3-4 बार मंदिर में आते देखा है। उसके कंधे पर पट्टी भी बंधी हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, बस यही मेरे वीर जी हैं, आप मुझे उनका पता बता दें कि वो कहाँ रहते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुजारी कहने लगा, ये मैं आपको कल पता करके बता दूंगा। जो आदमी उसके साथ आता है मैं उसे जानता हूँ, वो उसी सामत कॉलोनी में रहने वाला है। रात मैंने कोठरी में बसर की। दूसरे दिन दोपहर के बाद पुजारी मेरी कोठरी में आया और कहने लगा, आपके वीर जी सूबेदार दुर्गादास कल तक इस कॉलोनी में थे, मगर आज सुबह वो यहाँ से चले गए हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि पुजारी उसी शख्स की बात कर रहा है जिसकी मुझे तलाश थी, या वो कोई और आदमी है। जब मैंने तस्दीक करनी चाहिए तो पुजारी ने कहा, हाँ जी, मैं आपके वीर जी की ही बात कर रहा हूँ। वो सूबेदार था डोगरा रेजिमेंट में, उसका नाम दुर्गादास है। वो पहले भी फौज से रिटायर हुआ था, फिर उसे दोबारा फौज में रख लिया गया और कश्मीर भेज दिया। वहाँ उसे कांधे पर गोली लगी थी। उसने बहुत से आतंकवादी कश्मीरियों को मारा है। बड़ा मशहूर फौजी है। कश्मीरी तो उसे मुसलमानों का कसाई कहते थे, मगर वो तो अमृतसर का रहने वाला है। और आप कहते हैं कि मैं माता शेरावाली के शहर का हूँ। पुजारी ने ठीक आदमी पहचाना था। वो सूबेदार दुर्गादास की ही बात कर रहा था। मैंने कहा, असल में हम अमृतसर के ही रहने वाले हैं, मगर मैंने कांगड़ा में जाकर मुनियारी की दुकान कर ली है। ये बताएं कि हमारे वीर जी कहाँ चले गए हैं। पुजारी बोला, जिस आदमी की मैंने ये सारी बातें मालूम करने की ड्यूटी लगाई थी, उसका कहना है कि सूबेदार दुर्गादास बहुत डरा हुआ है। 2-3 बॉडीगार्ड हर वक्त उसके साथ होते हैं। यहाँ कलकत्ते में किसी जगह दुर्गादास ने थोड़ी सी जमीन खरीदी है, हो सकता है वो वहीं चला गया हो। मैंने पुजारी को जेब से 50 रुपए निकाल कर दिए और कहा, महाराज अगर आप मुझे पता करा दें कि मेरा भाई कहाँ पर है और उसकी जमीन जहाँ किस जगह पर है, तो मैं आपका बड़ा उभारी हूँगा। पुजारी ने रुपए फौरन अपनी सदरी की जेब में रख लिए और बोला, आप चिंता न करें, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत और दें, मैं सब कुछ मालूम करके आपको बता दूंगा। वो रात भी मैंने मंदिर में ही गुजार दी। उससे अगले रोज रात को पुजारी मेरी कोठरी में आया। वो खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, महाराज आपके वीर जी का पूरा पता चल गया है। उस पुजारी के बयान के मुताबिक सूबेदार दुर्गादास ने कलकत्ते के जुनूब में वाक़े चाय के एक छोटे से बाग में अपना हिस्सा डाला हुआ था, मगर वो वहाँ नहीं रहता था। उस चाय के बाग के पीछे कॉक्स बाजार को जाने वाली सड़क के किनारे रिटायर्ड फौजियों की फलाह बहबूद का एक इदारा था। ये सरकारी इदारा था। सूबेदार दुर्गादास इसी इदारे के ऑफिस में मुलाजिम हो गया था। इसी मकान में वो अकेला रह रहा था। रात को 3 बॉडीगार्ड मकान के इर्द गिर्द पहरा देते थे। दिन को यही बॉडीगार्ड उसे अपनी हिफाजत में लेकर एक बस में सवार होते और फौजी दफ्तर तक लाते थे। फिर जब दफ्तर से छुट्टी होती तो सूबेदार दुर्गादास को अपनी हिफाजत में वापस बस में सवार करवा कर घर ले आते। अब मेरा इस पुजारी के पास कोई काम नहीं था। मैं उसी रोज वापस अपने कलकत्ते के जासूस मुजाहिद के पास उसके दरियाए हुगली वाले क्वार्टर में पहुंच गया। रात को अपना जासूस मुजाहिद शाहदीन आया तो मैंने उसे सारी बात सुनाई। वो बोला, हाँ, धर्मचाली में एक फौजी फाउंडेशन का बहुत बड़ा ऑफिस है, मैंने देखा हुआ है, मगर वहाँ आने जाने की बड़ी पाबंदी है। जंग के बाद तो ये पाबंदी ज्यादा सख्त हो गई है। मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं खुद जाकर ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि जिस आदमी की मुझे तलाश है ये वही आदमी है। उसके बाद सूरत हाल का जायजा लेकर सोचूंगा कि मुझे इस इस्लाम दुश्मन को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। शाहदीन बोला, मैं तुम्हारे साथ धर्मचाली नहीं जा सकता, मगर मैं तुम्हें उसका सारा हुदूद दरबा समझा दूंगा। मैं कलकत्ते में रहा जरूर था, लेकिन इस इलाके की तरफ मेरा कभी जाना नहीं हुआ था। वैसे भी कलकत्ता इतना बड़ा शहर है कि आदमी 2-1 बार जहाँ रहने से सारा शहर नहीं देख सकता। शाहदीन के बताने के मुताबिक मैं धर्मचाली की कॉलोनी में पहुंच गया।
میں نے بھارت کے سابق فوجیوں کی فاؤنڈیشن کی عمارت کا بھی جائزہ لیا۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا، میرا ٹارگٹ کشمیری مسلمانوں کا قاتل صوبیدار درگا داس اسی دفتر میں کام کرتا تھا اور وہ اپنے 3 باڈی گارڈز کے ساتھ آفس آتا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے مکان سے بس میں سوار ہو کر دفتر آتا ہے اور اس کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر بس سٹاپ تھا۔ اس وقت صبح کے 8 ساڑھے 8 ہو رہے تھے۔ میں اسی لیے آفس کے ٹائم پر وہاں گیا تھا تاکہ اگر درگا داس اسی فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہے تو اسے دفتر آتے ہوئے دیکھ سکوں۔ میں بس سٹاپ سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ایک کٹے ہوئے درخت پر بیٹھ گیا۔ آفس ٹائم ہو چکا تھا، مگر یہ کوئی اتنا بڑا آفس بھی نہیں تھا کہ اس کے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ ایک بس آ کر کھڑی ہوئی، اس میں سے دبلے پتلے سانولے رنگ کے بنگالی بابو چھتریاں ہاتھوں میں لیے نکلے اور فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ میں ایک ایک آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ 15-16 مسافر بس سے اترے، ان میں صوبیدار درگا داس نہیں تھا۔ اس کے 15 منٹ کے بعد ایک اور بس آ کر سٹاپ پر رکی۔ اس میں سے پہلے 2 بنگالی عورتیں اور 2 بنگالی کلرک قسم کے آدمی اترے۔ اس کے بعد ذرا تنومند جسم والے آدمی اترے اور اترتے ہی انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ماحول پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد بس میں سے وہ آدمی نکلا جس کی مجھے تلاش سری نگر سے کھینچ کر یہاں لائی تھی اور جو میرا ٹارگٹ تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، اگرچہ اس کی مونچھیں نہیں تھیں اور اس نے بنگالیوں والا لباس یعنی دھوتی کرتا پہن رکھا تھا، مگر اس کی شکل ہو بہو اس تصویر سے ملتی تھی جو مجھے دکھائی گئی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی اتر کر اس کے پیچھے پیچھے یوں چلنے لگا جیسے پیچھے سے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس دوران پہلے والے باڈی گارڈ بھی اس کے دائیں بائیں اسے اپنی حفاظت میں لے کر فوجی فاؤنڈیشن کی طرف چل پڑے۔ وہ 3 باڈی گارڈ تھے اور ان کے درمیان بنگالی حلیہ والا یہ آدمی سینکڑوں معصوم کشمیری عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا قاتل صوبیدار درگا داس تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب میں اسے قریب سے بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر اتنا وقت نہ ملا۔ درگا داس اپنے باڈی گارڈز کی حفاظت میں فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر ایک ناریل پانی بیچنے والے کی ریڑھی کے قریب آ گیا، اسے ایک ناریل یا دھاب لی اور وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا۔ میں نے ریڑھی والے بنگالی سے کلکتے کی اردو زبان میں پوچھا کہ دفتر میں چھٹی کس وقت ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ چھٹی 4:30 بجے ہوتی ہے۔ سارا دن پڑا تھا، میں وہاں اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا، چنانچہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ واپس اپنے مجاہد شاہدین کے کوارٹر کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں یا کسی قریبی علاقے میں دن کا باقی وقت گزارتا ہوں۔ 4 بجے کے قریب یہاں دوبارہ آؤں گا اور بس سٹاپ پر کھڑا ہو کر صوبیدار درگا داس کو قریب سے دیکھوں گا۔ میں سب سے پہلے دھرم چالی کی کالونی میں آیا۔ یہ درمیانے درجے کی آبادی تھی، کوارٹر بھی تھے، پرانی کوٹھیاں بھی تھیں اور ایک مارکیٹ بھی۔ ایک مسئلہ میرے لیے یہ تھا کہ مجھے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپانا تھا یا کم از کم زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں جانا تھا، کیونکہ بھارت کے تقریباً ہر بڑے اور اہم شہر میں کمانڈو ایکشن سے فوجی تنصیبات کو زبردست نقصان پہنچا چکا تھا، اور وسطی بھارت یعنی گوالیار اور پانڈیچری کے سول تھانوں اور ملٹری پولیس کے پاس میری تصویر بھی تھی، اور 1-2 بار میری تصویر مفرور پاکستانی جاسوس کے الزام کے ساتھ جالندھر، دلی اور ہوشنگ آباد کے اخباروں میں بھی چھپ چکی تھی۔ چنانچہ مجھے بھارت کے کسی بھی شہر میں سر عام چلتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ اگرچہ میرا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا مگر میرا ناک نقشہ وہی تھا۔ میں نے اپنے چہرے کی کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی تھی۔ خفیہ پولیس کے آدمیوں کی تیز نگاہیں مجھے پہچان سکتی تھیں۔ چنانچہ میں نے دھرم چالی کالونی کی مارکیٹ کی طرف جانے سے گریز کیا اور کچھ فاصلے پر 3-4 ماڈرن عمارتیں نظر پڑی تو میں اس طرف چل دیا کہ یہاں کوئی ماڈرن قسم کا ریستوران ضرور ہوگا، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزار لوں گا۔ ماڈرن ریستورانوں میں زیادہ لوگ نہیں تھے اور وہاں روشنیاں بھی دھیمی ہوتی ہیں۔ یہ جدید عمارتیں کلکتے کے شمال مشرقی علاقے میں سبھاش چندر بوس نگر کی تھی۔ یہ ماڈرن کالونی آزادی ملنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ کشادہ سڑکیں تھیں، درمیان میں خمدار کھمبوں پر نیون لائٹ کی ٹیوبیں لگی ہوئی تھیں، گرین بیلٹ پر پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ایک بہت بڑا سینما ہاؤس بھی تھا جہاں بنگلہ فلم کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ سڑک پر 2 رویا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ بلڈنگوں کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جہاں ماڈرن بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ان بنگلوں میں کثرت سے ناریل پام اور کیلے کے درخت اگے ہوئے تھے۔ آگے فٹ پاتھ تھا، میں فٹ پاتھ پر چلتا گیا۔ میری بائیں جانب بڑی ماڈرن دکانیں تھیں۔ ایک جگہ ایک ریستوران نظر آیا تو میں اس کے اندر چلا گیا۔ یہ کافی شاپ تھی۔ میں کافی منگوا کر خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا۔ حلیہ میرا یہ تھا کہ داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، ماتھے پر تلک لگا تھا۔ لباس میرا ضرور ماڈرن تھا، یعنی میں نے سمر کے مٹیالے رنگ کی جیکٹ اور گہرے کلر کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے میں بھارت کا کوئی ماڈرن جوگی یا سنیاسی یا جوتشی لگتا تھا۔ اس قسم کے لوگ بھارت کے شہروں میں عام نظر آتے ہیں۔